Does aging scare you? That is a really good question. Okay, so let me tell you one thing about myself. Okay, so uh, I am 30. Okay, yes, and I have kind of like a something very good health. Okay, why? Because of that, ki I have proper diet. Okay, as also I do exercise. I am doing exercise for almost like a last 4 year. Okay, 2 year ago I was kind of like a something bicycling. Okay, for almost like a 30 kilometer every day. Then after that I started running. I run like basically from 2 year like a non-stop. Yeah, non-stop means like that from last 2 year I was kind of like a something running 30 minute every day non-stop. Okay, like without taking breaks anything. If I just start running, like I just stop after the 30 minute. Okay, and I am doing this thing for last 2 year. So I have kind of like something very good health. Okay, and I'm taking really good care of my health and everything. Okay, I'm not gonna say that I have kind of like a something with this kind of like apps. Like I don't really have any apps, or I don't really have any kind of like something like biceps or things like that. I can't afford go to the gym. Okay, but I will be afford to go to gym, and I will definitely do the gym. But at this moment I can't, so I just do run. Okay, and basically this thing it's kind of like a something like that ki I believe in myself that ki if I could kind of like a doing this thing like a running exercising every day, and I will be do this thing for the rest of the life. Okay, yeah. So if I just do this thing, I will definitely will not become like aging is not kind of like a something like that key factor for me, or kind of like a something scared thing for me. Yeah. Why is this kind of like a something people ask this question? Let me tell you one thing is that key everyone wants to be grow in their life. हर इंसान को like everyone wants to be grow in their life that कि they could become this and they could become that. What do you mean by that? Like I'm kind of like a something really telling a situation or telling some sort of like two statement. First statement is that there is a guy who is actually done PhD at the age of 21, and he went to MIT, or he went to like one of the greatest college in this, and he became kind of like a something scientist at the age of 22. Okay, 22 or kind of like something 23. Okay, so he's kind of like a something very smart, and he's kind of like a something really great. Okay, and I'm going to tell you another statement is that there is a guy who is actually done his PhD at the age of 29, and he got a job in one of the greatest company or one of the greatest things at the age of at the age of 20, at the age of 32. Okay, so these are kind of like a something two statement. Okay, there is a first statement is that there is a guy who actually got a job in kind of like a something like Google at the age of 23, and this is a guy who's actually at the age of 32. Okay, so these are the two statement, these are the two guys. Would you kind of like a which one would you appreciate, like would you think that who's gonna who did it something really best? Most of people says that the guy who did it at the age of 22 or 23, we should supposed to be appreciate that. Why? Because of that कि most of the people thinks that कि the things that we want to achieve early as possible in your life could become something really very good in the future. Okay, is it true statement? क्या ये सही है? हाँ, ये सही है. Okay, it's kind of like a something like truth, but it's depend on kind of like a something like person to person. It depends on situation, it depends on so many factor. Yeah, what do you mean by that? चलो मान लेते हैं. Have you watched this web series called Big Bang Theory? Okay, in that Big Bang Theory there is a two character. One character named Sheldon Cooper. He is very smart, he is kind of like a somebody very smart. Okay, he became scientist at the age of 24. Okay, and there is another guy is a Leonard who became the scientist at the age of 29. All right, yeah. But it's just like that ki after all those, like after he get a job or after he got a job, what is kind of like a something really the something really the target, or what is kind of like a something really that ki something really that next step. Like we don't really have any next step, means like that ki we have kind of like a something really create some sort of system. Okay,
that ki we should supposed to complete our education till the age of 22. We should supposed to be get a job at the age of 25. We should supposed to be get married at the age of 30 or before the 30. We should supposed to be having a child at the age of 31, 32. Okay, so these are kind of like a something like system that we make. Okay, and everyone should supposed to be follow that steps, or everyone is actually following that steps, everyone. Okay, हर कोई इंसान इसी स्टेप्स को फॉलो करता है. हाँ, सम हाउ एक दो साल आगे पीछे कर सकते हो, या जस्ट लाइक शादी 31 के 32 कर दो, या जॉब वगैरह वगैरह, बट इट जस्ट लाइक दीज आर काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली द सिस्टम दैट वी इन्वेंटेड और दैट वी हैव. ओके, सो बेसिकली इज दिस थिंग कि हम एक तरह से अप्रिशिएट करते टिल द एज ऑफ लाइक टिल वी गेट मैरिड, यानी शादी तक. ओके, यानी शादी तक आपको सारी चीज़ें अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है. बट आफ्टर यू गॉट मैरिड एंड आफ्टर यू गॉट सेटल जॉब, उसके बाद क्या अचीव करना है डूड? उसके बाद कुछ भी नहीं. या वी डोंट लिव, आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ लाइक समथिंग 90% perspective ऑफ द पीपल दे आर बीन थ्रू. ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली दिस थिंग कि आफ्टर दे गॉट अ सेटल जॉब, आफ्टर दे गेट मैरिड, तो उसके बाद सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कुछ भी नहीं फ्रॉम दिस गाय हु इज, या ही इज काइंड ऑफ लाइक समथिंग, बट उसका घर हो, गाड़ी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, वो जब चाहे वो कर सकते हैं. दिस इज काइंड ऑफ लाइक समथिंग हिज लाइफ एंड या. ओके, so that's why most of the people are kind of like a something really relate with the age. when ये सोचते हैं कि it just like that कि हमें शादी एक तरह से 30 तक करनी है, या बच्चे पैदा लाइक 30 या 31 तक करना है, या हमें जॉब या थिंग्स लाइक दैट कि हमें 25 तक करना है, 26. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग रूल बुक दैट वी मेक. ओके, एंड इफ वी डिडंट रियली फॉलो दैट थिंग, तो एक तरह से सोसाइटी कहती है या आपके पेरेंट्स कहते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल सेज दैट कि भाई तेरी उम्र हो गई है, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, या लाइक बेसिकली जॉब कर ले, कुछ तो कर ले. ओके, या लाइक बेसिकली मोस्ट ऑफ पीपल काउंटिंग टिल द एज ऑफ मे बी 26 और 30. ओके, उसके बाद लोग कोई काउंटिंग नहीं करते, उसके बाद किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता, नथिंग रियली एट ऑल. ओके, एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन दैट कि डज एजिंग इज मैटर, मीन्स लाइक दैट कि लोग एक तरह से लाइक basically people are literally fumble that ki what the fuck yaar. I also bit fumble, yeah, I fumble means like I also bit really scared that कि भाई मेरी उम्र 30 हो गई है, मैं अभी भी घर में रह रहा हूँ, अभी भी मैं पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ, आई एम नॉट रियली अर्निंग मनी. आई जस्ट फील लाइक दैट कि भाई क्या, और अभी भी आई हैव दिस काइंड ऑफ लाइक समथिंग ख्याल दैट आई हैव, एंड आई जस्ट फील रियली फ्रस्ट्रेटेड. Okay, but when I know about the truth of the life, that what is exactly I want. ओके, और लाइफ में जस्ट लाइक दैट ना कि मेरे लाइफ में जो टारगेट है, हाँ मैं उस टारगेट को अचीव कर सकता था टिल द एज ऑफ 30 और बिफोर द 30, बट मुझे पता ही नहीं था ना डूड कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इस तरह से जा सकता है. जस्ट लाइक दैट कि लाइक आई डोंट रियली गेट दैट मच अपॉर्चुनिटी, और मुझे पता ही नहीं था. जस्ट लाइक दैट ना कि क्या ये हो सकता है, मुझे नहीं पता था डूड. ओके, इट जस्ट लाइक दैट कि आई एम फाइंडिंग दिस थिंग, और ये नहीं चला, आई एम डूइंग दिस थिंग, फिर ये चला, फिर ये चला. इट जस्ट काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग लाइक दैट कि यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर लाइफ. आपको लगता है कि आपको वो जॉब मिल गई है जो आप चाहते थे, बट समहाउ इट इज नॉट. ओके, एट द एज ऑफ 45 आपको कुछ ऐसा मिल गया एट द एज ऑफ 45 जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई. ओके, इट जस्ट लाइक यू गेट अ जॉब एंड बेसिकली यू गॉट अ आइडिया, और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके आपने इतना सारा पैसा कमाया जो इट जस्ट लाइक आप पूरी लाइफ में भी उतना काम करते हैं, उतना पैसा नहीं कमाया जितने आपने इस आइडिया को लगा कर वगैरह. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग दिस थिंग. ओके, एज should supposed to be scared. Okay, everyone should supposed to be scared. I also scared even if I know about the truth and things like that. भाई ये बस कहने की बातें होती है. Okay, yeah, even if I say something, all those things, explain this thing to you वगैरह वगैरह वगैरह, but everyone like basically is this thing कि humans की development community के साथ हुई है. Okay, like humans are actually grow बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी. ओके, और मोस्ट ऑफ द पीपल यानी मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी में जिस तरह से सिस्टम को फॉलो किया जाता है, हम भी उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं. ओके, इट्स काइंड ऑफ लाइक समथिंग लाइक दैट कि यू आर द एवरेज ऑफ यूर काइंड ऑफ लाइक समथिंग कम्युनिटी. ओके, यानी 60-70% ऑफ द एवरेज ऑफ द कम्युनिटी, यानी बेसिकली आप कोई भी इंसान हो, 60 या 70% आप वही काम करते हो जो आपकी कम्युनिटी करती है. ओके, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज, एग्जैक्टली इज दिस थिंग. ओके, तो इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारे कहते हैं कि भाई तेरे को
इस यहाँ तक एक तरह से शादी करना है, यहाँ तक लेके तेरे को जॉब करना है, पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह वगैरह. दिस इज काइंड ऑफ लाइक समथिंग द स्टेप्स दैट यू. आणि क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है डूड. इट्स नॉट अ गलत. इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली दैट कि एक एक काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली दैट कि एक लिटिल बिट अमाउंट ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लाइक नॉट जस्ट बेहतर बट एक काइंड ऑफ लाइक समथिंगली इस स्टेप्स को या इस सिस्टम को फॉलो करके आप एक नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं, या नॉर्मल लाइफ को एक तरह से काइंड ऑफ लाइक समथिंगली दैट कि लाइक या दिस काइंड ऑफ लाइक समथिंग नॉर्मल लाइफ दैट यू गेट. ओके, इफ यू फॉलो दिस सिस्टम. ओके, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो यू विल बिकम टू डिफरेंट पर्सन. ओके, लाइक बेसिकली इफ़ यू फॉलो दिस सिस्टम तो आप एक नॉर्मल इंसान बनोगे. अभी नॉर्मल इंसान लाइक वट एवर द थिंग्स दैट यू आर इमेजिन एज अ नॉर्मल पर्सन, वो नॉर्मल इंसान जिसकी एक बीवी है, जिसका एक जॉब है, जिसका एक घर है, जिसका एक गाड़ी है, दैट्स इट. ओके, काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग द पार्ट ऑफ द क्राउड, दैट्स इट. ओके, एक नॉर्मल इंसान. अभी जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो सिस्टम को नहीं फॉलो करने के बाद दो इंसान पैदा होते हैं. ओके, एक जो सिस्टम को फॉलो किस तरह से करता है. What do you mean by that? Like basically there is a guy who is actually kind of like since the childhood वो एक तरह से क्रिमिनल में इन्वॉल्व था. वो छोटी मोटी चोरियाँ करता था, बड़े होके बड़े बड़े चोरियाँ करने लगा, and this and that he didn't really, he also have kind of like a criminal record and this and that he never really kind of like a somethingly focus in earning his life और वगैरह. वो सो मज़े करना चाहता था. he went to this country that country, उसने ये पैसा किया, उसमें जेल में भी गया, this and that. So there is a one guy, okay, जिसकी लाइफ काइंड ऑफ लाइक समथिंग बिकेम रियली हॉरिफल फ्रॉम ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से. बट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ही वॉज काइंड ऑफ लाइक अ लिविंग हिज लाइफ, लाइक अ लिविंग इन ड्रीम. मतलब क्या होता है ना कि कुछ लोग एक तरह सोसाइटी में बुरा काम करते हैं, बट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ही वॉज डूइंग समथिंग रियली ग्रेट. जो नॉर्मल इंसान एक तरह से नॉर्मल चीज़ों को फॉलो करता है, बट ये इंसान मन में जो चाहे वो कर सकता है. कहीं पे डाका डाल सकता है, किसी को खून कर सकता है, दूसरे कंट्री में जाकर लाइक बेसिकली जस्ट लाइक हर लड़की के साथ सेक्स कर सकता है. ही जस्ट वांट्स टू, उसके बाद बहुत सारा पैसा है, दिस एंड दैट. हाँ, वो जेल में भी गया, उसके बहुत सारे कनेक्शन है. ही जस्ट या ओके. तो एक वो इंसान होते हैं. अब एक दूसरे इंसान होते हैं जो काइंड ऑफ लाइक समथिंग डिडंट रियली फॉलो द सिस्टम बिकॉज ऑफ दैट कि दे वॉन्ट टू बिकेम समथिंग रियली डिफरेंट, और दे वॉन्ट टू समथिंग रियली दैट कि उनको पता चल गया कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको एक तरह से मिडिल क्लास जो ट्रैप होता है ना, उसके हट कर आपको कुछ ऐसे करने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको प्रेजेंट को रूइन करना पड़ता है. यानी आपको जिस मोमेंट को आप जी रहे हैं ना, उस मोमेंट को एक तरह से पूरी से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है. उस मोमेंट पे आपको सीखना पड़ता है, ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, एवरीथिंग फॉर द फ्यूचर. फिर ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर 5-10 ईयर ऑफ ग्राइंडिंग, उसके बाद धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते हो, और इम्प्रूव करने के बाद आप इस तरह से ग्रो हो जाते हो जो नॉर्मल से बिल्कुल हटकर हो जाते हैं, और वो लोग इंसान अमीर लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं. सो दीज आर काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग विद दिस थिंग. इफ़ यू फॉलो दिस सिस्टम तो ऑलमोस्ट लाइक अ सोसाइटी में 100 आउट ऑफ 90% ऑफ पीपल आर काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली फॉलो दिस सिस्टम. एक नॉर्मल सिस्टम जहाँ पे शादी, बच्चे, दिस इज दैट. ओके. फिर ऑलमोस्ट लाइक अमीर लोग होते हैं, वो ऑलमोस्ट लाइक 8%. ओके, यानी 90% नॉर्मल लोग, 8% ऑफ द पीपल हु विल बिकेम अमीर वगैरह वगैरह. फिर 2% लोग होते हैं जो एक तरह से क्रिमिनल में इन्वॉल्व करते हैं. अभी 2%, वाई दिस 2%? बिकॉज ऑफ दैट कि हमें बचपन से बताया जाता है कि चोरी करना गलत बात है, किसी का खून करना गलत बात है. ओके, सो दैट्स वाई वी हैव मेंटालिटी टू नॉट टू चूज दिस पाथ. बट ये 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग होते हैं जो चूज करते हैं ये पाथ, और दिस वजह से 100 आउट ऑफ 2% ऑफ पीपल काइंड ऑफ लाइक अ बिकेम दिस काइंड ऑफ लाइक अ क्रिमिनल ऑन दिस लाइक दैट. ओके, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थिंग. लाइफ इस तरह से चलती है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव दिस काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग सिस्टम वगैरह वगैरह. ओके, सो question is about that. Like I don't know, I just kind of like something over explain things, but yeah, the question is that does aging scared you? Ha, yes, I scared you. Yeah, I did. Like basically is this thing कि आई डू हैव काइंड ऑफ लाइक समथिंग फोबिया दैट कि सोसाइटी क्या कहेगी मेरे बारे में वगैरह वगैरह. आई डू हैव दैट फियर, आई डू हैव दैट स्केयर्ड. ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी बिकम दैट काइंड ऑफ लाइक समथिंग रिच पर्सन. ओके, बट उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर वो चीज़ कर रहा हूँ जिससे मैं वो इंसान बन पाऊँ जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ.
ओके। बट उसके लिए मुझे बहुत मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा और मैं कर रहा हूँ। ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग सपोर्ट कुछ भी नहीं है। ओके, नॉट फ्रॉम द पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम एनी वन इज दिस थिंग। बस खुद से एक तरह से this artifact that I have, and this kind of like a something inspiration from inside of me, and that's kind of like a doing it. Okay, yeah, but still I do scared about aging. हाँ, but I do care of the health and things like that, exercise वगैरह तो है. All right, so this then I should supposed to be end here, and thank you.